learn about the some basic concept of coordination compound part 2. Today's video include the following points: coordination number, types of coordination complex on the basis of types of ligand, then nature of coordination complex, and lastly the Werner's theory of coordination complex. Let us start this video by using first point, that is coordination number. यहाँ पे हम बेसिक कंसेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं. पार्ट फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था कि पर्टिकुलर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे फॉर्म होते हैं, और इस वीडियो में हम देखेंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर, टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ लिगैंड कैसे रहते हैं, नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स एंड वेरनर्स थ्योरी. इन लास्ट वीडियो we discuss about the coordination sphere by giving this example, that is K4 in bracket F is Cm by 6. Here 4 negative is the oxidation state of this particular coordination sphere. Here Fe atom, that is iron atom, is surrounded by 6 types of ligand. Here Cn is the ligand. We donate the lone pair of electron towards the vacant orbital of the metal ion. This K4 is considered as a counter ion. That is potassium is considered as a counter ion because this K4 present outside the coordination sphere. ये पोटेशियम हम क्या करके डिनोट करते हैं, काउंटर आयन, बिकॉज K4 that is potassium present outside of the कोऑर्डिनेशन स्फीयर. कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, काउंटर आयन. इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर द Fe, that is the metal, and ligands are present. Then the question arises that, so what is meant by coordination number? Generally the coordination number is considered as the number of sigma bond, that is coordinate covalent bond is formed between the central atom with ligand. That is number of sigma bond is formed between the ligand and central metal ion. Here हम क्या करें कि कोऑर्डिनेशन नंबर यानी क्या कि पर्टिकुलर कितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होते हैं बिटवीन द सेंट्रल मेटल आयन और लिगैंड के बीच में, उसको हम क्या कहते हैं, पर्टिकुलर कोऑर्डिनेशन नंबर. बाय गिविंग अनदर एग्जांपल, हियर CO Cm by 6, 3 negative, here K3 positive. Here also the 6 ligands are attached to the central metal ion. Here the coordination of this particular complex is 6. Here the coordination number of this complex is also 6. Then another example is Cr S2 by 6, 3 positive. S2 by 6, 3 positive. Then CO NH3 by 6, NH3 by 6, 3 positive. These are the particular examples of coordination number, which this complex is also as coordination number 6 and this complex is also as coordination number 6. But here the number of ligand does not extend the coordination number. यानी क्या, जितने नंबर ऑफ लिगैंड यहाँ पे हैं वो कोऑर्डिनेशन नंबर डिनोट नहीं करते. फॉर एग्जांपल CO EM by 3 पॉजिटिव. यहाँ पे क्या है, EN we know that EN is the symbolized for ethylene diamine. Here formula of ethylene diamine is CH2, one NH2 attached to the one CH2 atom and another NH2 attached to the another CH2 atom. यहाँ पे क्या है कि पर्टिकुलर इट इज द bidentate ligand. We already studied that the types of ligand where it is the bidentate ligand, because here the two
donor atoms are present in the one ligand. और यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे ऐसा हम कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है, क्योंकि लिगैंड की जो क्वांटिटी है यहाँ पे कितनी 3, बट इट डज नॉट एक्सप्लेन, लिगैंड नंबर डज नॉट एक्सप्लेन द कोऑर्डिनेशन नंबर। यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 6 होगा, क्योंकि यहाँ पे डोनर आइटम कितने हैं 1 2 और यहाँ पे 2 into 3 is equal to 6। यहाँ पे 6 डोनर आइटम है किस पे, ओनली वन टाइप ऑफ लिगैंड पे, सो दैट द ligand number does not explain the number of coordination which is bonded with particular central metal atom. That is ligand number does not explain the coordination number. ये अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। यहाँ पे नंबर ऑफ लिगैंड जितने होते हैं उतना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या किस पे डिपेंड है, जितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होते हैं किसके साथ, सेंट्रल मेटल एटम के साथ, दैट इज number of sigma bond or coordinate covalent bond which is formed between the central metal atom with ligand. This is said to be the coordination number. It is not related to the number of ligand present in particular complex. यहाँ पे 3 है तो इसका coordination number 3 नहीं होगा, क्योंकि it is the bidentate ligand, so that one ligand contain 2 donor atom. Okay, so that the coordination or number of this particular complex is 6. Let us take the another example. CO, H2O, Cn, En by 2 positive. Here, the coordination number of this complex is also 6. यहाँ पे कितने लिगैंड है, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 लिगैंड आपको दिख रहे हैं, लेकिन इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 6, because here presence of bidentate ligand where the 2 donor atoms are present in a single type of ligand, so that by counting the number of sigma bond is formed between the central metal atom, we can find out the coordination number of this particular complex. Let us take another example also. CO, En by 2 Br2 positive ion. Here also the coordination number of this complex is also 6. CO, NH3 by 4 Cl2 positive. The coordination number of this complex is 6 also. यहाँ पे कितने हैं 4, NH3 आइटम कितने हैं 4 और Cl2 कितने हैं 2, 4 और 2 कितने होते हैं 6। यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिगैंड कितने हैं 4 और 2 6, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है लिगैंड का नंबर कितना है उतना ही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 2 और 2 4, यहाँ पे 4 कितने लिगैंड है, लेकिन the coordination number of this complex is 6 because the bidentate ligand present in this particular complex. This is all about the coordination number of particular complexes. आपको समझ में आया होगा कि पर्टिकुलर व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर, द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड दैट इज कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड which is formed between the central metal atom with ligand is said to be the coordination number. The coordination number is not related to the number of ligand present in particular complex. Number second one is the types of ligand, types of coordination complex on the basis of types of ligand. There are 2 types of ligand. That is the number 1 is the homoleptic and second one is the heteroleptic complexes. That is homoleptic and heteroleptic. That is what is meant by homoleptic complexes. The complexes which contain only one type of ligand. That is यहाँ पे homoleptic complexes यानी क्या, यहाँ पे खाली one type of donor atom रहता है, one type of donor atom or one type of ligand are present in homoleptic complexes. यानी कि क्या, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं FeCN/6, यहाँ पे Cn is only one type of ligand है, CO में भी Cn is only one type of ligand, Cr H2/6 में भी only one type of ligand, CO NH3/6 इसमें भी only one type of ligand है. So that this particular complexes are said to be the homoleptic ligand where the one type of donor atom is present. That is only one type of ligand are present in a particular complexes. This such a type of complexes are said to be the homoleptic ligand.
जहां पे खाली एक ही टाइप का लिगैंड रहता है, यहाँ पे सी नहीं है, दूसरा कोई यहाँ पे लिगैंड यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे दूसरा टाइप का लिगैंड प्रेजेंट नहीं है, खाली H2O, CN और NH3 टाइप के ही यहाँ पे क्या है लिगैंड प्रेजेंट है, सो दैट दिस टाइप ऑफ पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्सेस आर सेड टू बी द होमोलेप्टिक लिगैंड। देन व्हाट इज मीन बाय हेटेरोलेप्टिक लिगैंड? यहाँ पे टू or more types of donor atoms are present. Donor atoms are present in a particular complex. यहाँ पे क्या कह रहे हैं? दो, कम से कम दो और दो से ज्यादा टाइप के यहाँ पे डोनर एटम प्रेजेंट रहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं कि हेटेरोलेप्टिक लिगैंड। यहाँ पे वन टाइप का लिगैंड था, यहाँ पे ओनली वन टाइप का लिगैंड था, सो दैट इज सेड टू द होमोलेप्टिक लिगैंड। और हेटेरोलेप्टिक लिगैंड में क्या है? वन और मोर टाइप्स ऑफ लिगैंड। फॉर एग्जांपल CO, H2O, CN, EN/2, यहाँ पे कितने टाइप के लिगैंड है? H2O भी एक लिगैंड है, CN भी एक लिगैंड है, EN/2 भी एक लिगैंड है, यहाँ पे तीन टाइप के लिगैंड है, सो दैट दिस such a type of ligand are said to be the heteroleptic ligand or heteroleptic complexes. यहाँ पे कितना है? EN only one type of ligand and this is second one is the Br is also another type of ligand. यहाँ पे दो टाइप के ligand है, एक और दो, और this such a type of ligand is also called as the heteroleptic coordination complex. Then यहाँ पे NH3 one type of ligand है और CN2 another type of ligand है। यहाँ पे कितने हैं? एक और दो टाइप के यहाँ पे लिगैंड है, सो दैट दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस आर सेड टू बी द हेटेरोलेप्टिक लिगैंड्स और हेटेरोलेप्टिक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। फिर से देखो, हमने क्या कहा कि होमोलेप्टिक लिगैंड यानी क्या? जहां पे खाली ओनली एक ही टाइप का क्या होगा? डोनर एटम प्रेजेंट रहेगा, एक ही टाइप का लिगैंड वहां पे प्रेजेंट रहेगा। जैसे कि हमने देखा कि इस एग्जांपल में CN, H2O, NH3 और ये कैसे है? एक ही टाइप के लिगैंड है, दूसरा उसमें कोई भी अनदर टाइप का लिगैंड वहां पे प्रेजेंट नहीं, सभी सेम, सो दैट दिस टाइप ऑफ लिगैंड हमने कहा होमोलेप्टिक लिगैंड और होमोलेप्टिक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। हेटेरोलेप्टिक में क्या है कि टू और मोर टाइप्स ऑफ डोनर एटम प्रेजेंट, टू और मोर, एक से ज्यादा टाइप की वहां पे क्या होगा? लिगैंड प्रेजेंट हो गए। वहां पे हमने बोला कि ये द बाइडेटेड लिगैंड, ठीक है, ये तो दोनों सेम रहेंगे, लेकिन Br भी है, ठीक है, तो Br और EN दैट इज ethylene diamine, these are the two types of ligand, so that this is the heteroleptic coordination compound or coordination complexes are formed by different types of ligand. Then number third is the nature of coordination complex. Number third is the nature of coordination complex. These coordination complexes are formed by, number one is the anionic and anionic. Second number is the cationic, and number third is the neutral sphere complex. Anionic complex, cationic complex, these are the complex one, and neutral sphere complex. यहाँ पे देखो, नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में तीन टाइप के पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स रहते हैं। कौन से? आयोनिक कॉम्प्लेक्स, कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स एंड न्यूट्रल स्फीयर कॉम्प्लेक्स। अब इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, हम इसको कैसे देखेंगे? अब एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे हमने देखा K4FeCN/6 दैट इज 4 नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे कितने नेगेटिव चार्ज है? दैट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दैट पर्टिकुलर कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज 4 नेगेटिव। देन K4FeCN/6 4 नेगेटिव। अब एक कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा? यहाँ पे देखो, इसका आयोनाइजेशन होने के बाद हमको मिलेगा 4K पॉजिटिव एंड एक स्फीयर मिलेगा CN/6 4 नेगेटिव। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो FeCN/6 4 नेगेटिव है, इट इज anion, that is complex anion. Which one? Complex anion. Then 4K positive है simple cation. K4FeCN/6 4 नेगेटिव, इसका आयोनाइजेशन होने के बाद हमको मिलता है
4K पॉजिटिव प्लस FeCN/6 4 नेगेटिव। जो 4K पॉजिटिव है, यहाँ पे जो 4K पॉजिटिव हमको मिल रहा है, इट इज अ सिंपल कैटायन, एक ऐसा सिंपल कैटायन। लेकिन हमको जो कॉम्प्लेक्स मिल रहा है, ये कौन सा है? FeCN/6 4 नेगेटिव इज द कॉम्प्लेक्स एनायन। जहां पे सिंपल कैटायन रहता है और कॉम्प्लेक्स एनायन रहता है, दिस सच टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस आर सेड टू बी द एनायोनिक कॉम्प्लेक्स। इनको हम क्या कहेंगे? एनायोनिक कॉम्प्लेक्स। दैट इज वेयर द सिंपल कैटायन, क्या सिंपल कैटायन रहेगा और कॉम्प्लेक्स एनायन प्रेजेंट रहेगा, उसको हम कहेंगे एनायोनिक कॉम्प्लेक्स। नंबर सेकंड इज द कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स। Here two examples are here. Cr(H2O)6 3 पॉजिटिव, और यहाँ पे आप काउंटर आयन वहां भी प्रेजेंट रह सकता है, क्योंकि 3 पॉजिटिव है तो हमको आयन कोई भी फ्री स्टेट में नहीं मिलेगा, उसके साथ कोई भी ना कोई काउंटर आयन रहेगा। यहाँ पे पॉजिटिव है तो काउंटर आयन रहेगा नेगेटिव, यहाँ पे काउंटर कोऑर्डिनेशन पेयर था नेगेटिव चार्ज, सो दैट काउंटर आयन कौन सा था? पॉजिटिव चार्ज। सो दैट this complex is also we get in the particular bonding form with the particular anion, here Cl3 negative। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि particular Cr(H2O)6 3 positive ion is the complex image। The present particular metal ion ligand side present inside the sphere, this is said to be the complex cation। और Cl3 negative जो है वो क्या रहेगा? simple anion। अब यहाँ पे क्या है? सेम ऑपोजिट टू दैट पर्टिकुलर एनायनिक कॉम्प्लेक्स और द कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे क्या था? यहाँ पे सिंपल कैटायन था, कॉम्प्लेक्स एनायन था। यहाँ पे क्या है? कॉम्प्लेक्स कैटायन है और यहाँ पे सिंपल एनायन है। जहाँ पे कॉम्प्लेक्स कैटायन रहेगा, सिंपल एनायन रहेगा, उसको हम कहेंगे कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। जहाँ पे सिंपल कैटायन रहेगा, कॉम्प्लेक्स एनायन रहेगा, उसको हम कहेंगे एनायनिक कॉम्प्लेक्स। These are the good difference between the ionic complex and cationic complex। न्यूट्रल स्फीयर कॉम्प्लेक्स कैसा रहेगा? न्यूट्रल स्फीयर कॉम्प्लेक्स ऐसा रहेगा जहां पे बोथ दैट इज पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज स्फीयर आर प्रेजेंट और आल्सो द चार्जलेस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स आर प्रेजेंट। फॉर एग्जांपल NiCO/4, this is the neutral complex। This particular coordination complex does not have any charge on that particular coordination sphere or coordination entity। यहाँ पे किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं, चार्ज ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स इज 0। चार्ज ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स इज 0, सो दैट दिस सच टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स आर सेड टू द न्यूट्रल स्फीयर कॉम्प्लेक्स। अनदर एग्जांपल हम देख सकते हैं कि पर्टिकुलर बाय टेकिंग बोथ स्फीयर विद ईच अदर। यहाँ पे COCl/6 3 नेगेटिव डॉट Cr(H2O)6 3 पॉजिटिव। अब ये दोनों कॉम्प्लेक्स कैसे? यहाँ पे दिस चार्ज ऑफ दिस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स इज न्यूट्रलाइज्ड बाय दिस कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे 3 नेगेटिव था, यहाँ पे कैसा है? 3 पॉजिटिव है और पॉजिटिव 3 है और नेगेटिव भी 3 है, तो यहाँ पे क्या होगा? न्यूट्रलाइज होगा। पर्टिकुलर बोथ कॉम्प्लेक्सेस आर न्यूट्रलाइज विद ईच अदर, सो दैट दिस सच टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स इज आल्सो सेड टू बी द न्यूट्रल स्फीयर कॉम्प्लेक्स। क्या कहेंगे हम इसको? न्यूट्रल स्फीयर कॉम्प्लेक्स। एक है, देखो फिर से, नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में 3 टाइप के पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स आते हैं। एक आयनिक कॉम्प्लेक्स, दूसरा कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, तीसरा न्यूट्रल स्फीयर कॉम्प्लेक्स। आयनिक कॉम्प्लेक्स में क्या था? पर्टिकुलर वहां पे सिंपल कैटायन था और कॉम्प्लेक्स एनायन था। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में कैसा था? सिंपल एनायन था और कॉम्प्लेक्स कैटायन था। कॉम्प्लेक्स कैटायन है वहां पे, ठीक है। तो न्यूट्रल स्फीयर कॉम्प्लेक्स में कैसा? वहां पे कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं रहेगा, पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स पे कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं रहेगा, ठीक है। तो उसका एग्जांपल हमने लिया निकेल CO/4, दिस इज पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स कैरीज 0 चार्ज, so that this type of complex is said to be the neutral sphere complex। Another example of neutral sphere complex is COCl/6 3 नेगेटिव। यहाँ पे कोई काउंटर आयन नहीं, यहाँ पे 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर हमने यूज किए। एक कौन सा? COCl/6 3 नेगेटिव
और Cr(H2)6 3 पॉजिटिव, दिस 3 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव क्या हो गए, एक दूसरे के साथ न्यूट्रलाइज होंगे, दिस आर द पर्टिकुलर न्यूट्रल एंड बिकम्स अ न्यूट्रल स्फीयर कॉम्प्लेक्स। ये दोनों क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल स्फीयर कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। सो दैट दिस सच टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स इज आल्सो सेड टू द न्यूट्रल स्फीयर कॉम्प्लेक्स। देन नंबर 4 इज द Wareness theory. Wareness में क्या है? There are so many scientists try to explain the properties of particular coordination compounds. बहुत सारे साइंटिस्ट ने ट्राई किया था इसके लिए पर्टिकुलर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के प्रॉपर्टीज बताने के लिए, बट दिस सच टाइप ऑफ theories are not sacrificed but properly explain the particular properties of coordination complex. Then Werner in 1893 explained he studied the particular complexes containing platinum 4 with amine, platinum 4 with amines, and used the theory of Werner's theory. That theory is said to be the Werner's theory. He tried to explain the properties of coordination complex. Werner ने क्या किया, 1893 में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स लिए, उसने अच्छी तरह से स्टडी किया और उसने आपको बताया कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसी आर प्रेजेंट इन द पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स। वहां पे 2 टाइप की वैलेंसी रहती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसी, 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसी। There are 2 types of valency are present in particular complex. Particular complex में कितने टाइप की वैलेंसी रहती है, 2 टाइप की। नंबर 1 प्राइमरी एंड प्राइमरी वैलेंसी। पहले प्राइमरी वैलेंसी के बारे में बात करें। प्राइमरी वैलेंसी इज एक्सप्लेन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन। ठीक है, तो सेंट्रल मेटल आयन और सेंट्रल मेटल एटम के ऑक्सीडेशन स्टेट कौन बताता है, पर्टिकुलर प्राइमरी वैलेंसी। दैट इज प्राइमरी वैलेंसी एक्सप्लेन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। दिस सच टाइप ऑफ प्राइमरी वैलेंसी प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। या दैट इज दिस प्राइमरी वैलेंसी प्रेजेंट आउटसाइड, कहां पे रहती है, आउटसाइड ऑफ द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। यहाँ पे CS यानी क्या, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। C फॉर कोऑर्डिनेशन, S फॉर स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर में क्या रहती है, पर्टिकुलर प्राइमरी वैलेंसी प्रेजेंट रहती है। फॉर एग्जाम्पल Fe(Cl)6 इट इज द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और जो बाहर है ये K4 जो मिला है हमको, K4 पॉजिटिव, ये क्या है, इट इज द प्राइमरी वैलेंसी। ये कौन सी वैलेंसी होगी, प्राइमरी वैलेंसी। दूसरा एग्जांपल अभी दिखा रहा है हमने, NH3/6 3 पॉजिटिव और Cl 3 नेगेटिव। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे हमने जो देखा है Cl3, ये जो क्या है, पर्टिकुलर नेगेटिव चार्ज, इट इज द प्राइमरी वैलेंसी, ठीक है। तो इट इज आल्सो सेड टू बी द काउंटर आयन। इसको हम क्या कहते हैं, काउंटर आयन, because it is present outside of the coordination sphere. Counter ion, it is said to be the counter ion. प्राइमरी वैलेंसी हमको क्या बताता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। यहाँ पे K4 है, K4 पॉजिटिव है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई, कोऑर्डिनेशन स्फीयर की 4 नेगेटिव। कितनी हो गई, 4 नेगेटिव। यहाँ पे CONH3/6 3 पॉजिटिव है, यहाँ पे 3Cl नेगेटिव है। कितने नेगेटिव है, 3Cl नेगेटिव। वहां से हम क्या बता सकते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कौन सा चार्ज होगा, 3 पॉजिटिव चार्ज होगा। कौन सा चार्ज होगा, 3 पॉजिटिव। सो दैट we say that the oxidation state of the central metal atom or ion is explained by the particular primary valency one. It is present outside of the coordination sphere. It is also called as the counter ion and it is ionizable. So that it is said to be the ionic valency. इसको हम क्या कह सकते हैं, ionic valency और primary valency। प्राइमरी और प्रिंसिपल वैलेंसी, इट इज आल्सो सेड टू बी द प्रिंसिपल वैलेंसी और आयोनिक वैलेंसी। फिर से बताता हूं कि पर्टिकुलर प्राइमरी वैलेंसी यानी क्या है।
प्राइमरी वैलेंसी explain the oxidation state of central metal atom or ion which is present outside of the coordination sphere. It is said to be the counter ion, and so that it is present outside of the coordination sphere, it is ionizable, so that it is also said to be the ionic valency or principal valency of that particular coordination complex. It is all about the primary ion. या इसको आप नोट कर सकते हैं. Explain oxidation state outside the sphere, counter ion, ionizable. कैसा है? आयोनाइज होता है. क्या होता है? आयोनाइज होता है. ठीक है. Then the number second one is the secondary valency. Second क्या हुआ? Secondary valency. Secondary valency. It is also called as auxiliary valency. Auxiliary valency. अब सब्सिडियरी वैलेंसी भी इसको कहते हैं. कौन सा कहते हैं? सब्सिडियरी वैलेंसी. सब्सिडियरी वैलेंसी तीन नाम है इसको. सेकेंडरी वैलेंसी, auxiliary valency और सब्सिडियरी वैलेंसी. दिस पर्टिकुलर सेकेंडरी वैलेंसी एक्सप्लेन द कोऑर्डिनेशन नंबर. ये क्या एक्सप्लेन करता है? कोऑर्डिनेशन नंबर. कोऑर्डिनेशन नंबर, that is number of donor atoms present in particular complex. Coordination number is also denoted by capital C, capital N. Coordination number. ये कौन एक्सप्लेन करता है? सेकेंडरी वैलेंसीज. यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी में एक पॉइंट रहेगा अपना. द प्राइमरी वैलेंसी इज डिनोटेड बाय डैश लाइन. डैश लाइन रिप्रेजेंटेड बाय डैश लाइन. ठीक है. प्राइमरी वैलेंस में क्या होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सप्लेन करता है. आउटसाइड द स्फीयर रहता है. काउंटर आयन इसको कहते हैं. आयनाइजेबल रहता है. आयनिक, इसलिए इसको आयनिक वैलेंसी कहते हैं. इट इज आल्सो सेड टू बी द प्रिंसिपल वैलेंसी और इट इज डिनोटेड बाय डैश लाइन. देन सेकेंडरी वैलेंसी, इट इज आल्सो सेड टू बी द auxiliary वैलेंसी. इट इज आल्सो सेड टू बी द सब्सिडियरी वैलेंसी. और एक क्या एक्सप्लेन करता है? कोऑर्डिनेशन नंबर. नंबर ऑफ donor atom present in particular ligand. Number of sigma bond found between the central metal atom with ligand. Then number second. अब एक coordination number explain करता है. So that it is present inside the coordination sphere. It is present inside the coordination sphere. ये कहाँ पे present रहता है? इस coordination sphere के अंदर present रहता है. Number third. It is non-ionizable. It is non-ionizable. इसका आयोनाइजेशन नहीं होता है. कोऑर्डिनेशन नंबर एक्सप्लेन करता है. इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर रहता है. इट इज नॉन आयोनाइजेबल, सो दैट इट इज सेड टू बी द कोऑर्डिनेशन एंटिटी. कोऑर्डिनेशन एंटिटी. सेकेंडरी वैलेंसी क्या एक्सप्लेन करता है? कोऑर्डिनेशन नंबर. नंबर ऑफ donor atom present in number of sigma bond formed between the ligand of particular central metal atom or ion. दूसरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर रहता है. सेकेंडरी वैलेंसी कहां पे प्रेजेंट रहती है? इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, सो दैट इट इज नॉन आयनाइजेबल. हमने पहले कहा कि कॉम्प्लेक्स है, अंदर है, तो कैसा रहेगा? नॉन आयनाइजेबल, सो दैट इट इज सेड टू द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स. सो ओके, देन इट इज आल्सो सेड टू बी द कोऑर्डिनेशन एंटिटी. इट इज आल्सो सेड टू बी द कोऑर्डिनेशन एंटिटी. अब यहां पे तो इतना आ गया. और दिस पर्टिकुलर सेकेंडरी वैलेंसी आर रिप्रेजेंटेड बाय थिक लाइन. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय थिक लाइन. ओके, अब यहाँ पे एक एग्जांपल लेके हम इसको एक्सप्लेन करते हैं. वहां पे ड्यूअल नेचर का भी एक पर्टिकुलर लाइन वहां पे प्रेजेंट रहता है इन द सेकेंडरी वैलेंस में. वो कैसे रहता मैं आपको बताऊं. बाय टेकिंग वन एग्जांपल we can explain the dual nature of particular secondary valency. यहाँ पे एग्जांपल लेंगे हम. CO H2O by 5 Cl2. यहाँ पे डाई पॉजिटिव है. ओके, क्योंकि हमने पहले बताया क्या एक्सप्लेन करता है? काउंटर आयन, इसका कोऑर्डिनेशन सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द पर्टिकुलर कोऑर्डिनेशन स्फीयर हमको एक्सप्लेन करता है. 2 Cl है, एक Cl पे कितना? 1 नेगेटिव चार्ज. 2 Cl है तो 2 नेगेटिव चार्ज. तो कॉम्प्लेक्स पे कितना आएगा? 2 पॉजिटिव चार्ज. ओके,
देख हमने कहा कि यहाँ पे जो एक Cl है जो अंदर है, इट एक्ट एज अ ड्यूअल नेचर फॉर द कंप्लीशन ऑफ पर्टिकुलर number of ligand to the central metal atom. That is, it explains the particular oxidation state of particular complex. How it is possible? Let us see. पहले तो हम इसके बारे में बताएंगे। यहाँ पे कोबाल्ट है, यहाँ पे एक H2 होगा, यहाँ पे दूसरा H2, यहाँ पे तीसरा H2 हमने निकाला, 3 हो गए, एक रहेगा 4, यहाँ पे एक H2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक और H2 हो गए, ये 5 हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए, ठीक है। तो यह एक यहाँ पे क्या है Cl, एक यहाँ पे क्या है Cl है। अब इसका पर्टिकुलर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स हमारा पूरा हो गया और 2 Cl है। इट इज द पर्टिकुलर, ये एक कौन सी वैलेंसी, इट इज द प्राइमरी वैलेंसी विच इज डिनोटेड बाय डॉट लाइन। हियर Cl1, दिस इज अनदर Cl1। और जो एक Cl है इसको हम थिक और डैश लाइन से बताते हैं, एक थिक लाइन और एक डैश लाइन रहेगी। इट इज द सेकेंडरी वैलेंसी विच एक्ट एज अ ड्यूअल इन नेचर, ड्यूअल इन नेचर। इसका नेचर कैसा है, ड्यूअल इन कैरेक्टर। समटाइम्स इट एक्ट एज अ प्राइमरी वैलेंसी, समटाइम्स इट एक्ट एज अ सेकेंडरी वैलेंसी, सो दैट इट इज सेड टू द ड्यूअल नेचर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसी। या इसको और बाद में हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो अब हम कहते हैं कि जो सेकेंडरी वैलेंसी है, इट गिव्स अस an idea about the geometry of coordination complex। 6 पॉइंट, जो छठवां पॉइंट है हमारा, ये क्या कहते हैं हम, इट एक्सप्लेन ज्योमेट्री ऑफ पर्टिकुलर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। अब क्या, ये तो पहले बताते हैं कि हमको नंबर ऑफ लिगैंड कितने हैं, बराबर है, नंबर ऑफ लिगैंड। और नंबर ऑफ लिगैंड पे हम बता सकते हैं कि उसकी पोजीशन कैसी है, और पोजीशन से बता सकते हैं कि हम उसका पर्टिकुलर ज्योमेट्री कैसा है। दैट इज द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ पर्टिकुलर लिगैंड्स अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम। ये सेंट्रल एटम है और नंबर ऑफ लिगैंड की तरफ से हम बता सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ लिगैंड है, और वो उसकी पोजीशन, उस पे नंबर ऑफ लिगैंड पे क्या डिपेंड करेगा, उसकी पोजीशन, किसकी, पर्टिकुलर लिगैंड की पोजीशन भी सेंट्रल मेटल एटम। अगर 2 रहे, हमने कहा क्या कहा कि पर्टिकुलर लिगैंड 2 रहे, तो क्या होगा, उसकी ज्योमेट्री होगी लीनियर, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर 2 रहा तो उसका ज्योमेट्री क्या होगा, लीनियर इन नेचर, दैट इज लीनियर। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 रहा तो उसका ज्योमेट्री क्या होगा, ट्रायंगुलर। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहा तो 2 टाइप के पर्टिकुलर ज्योमेट्री पॉसिबल रह सकती है वहां पे, एक तो है टेट्राहेड्रल और दूसरा रहेगा स्क्वायर प्लेनर। इसके ज्योमेट्री हम अगले लेक्चर में हम 1 बाय 1 देखेंगे, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहा तो उसका क्या रहेगा ज्योमेट्री, ऑक्टाहेड्रल। That is coordination number also explain the secondary valency is also explain the geometry of coordination complex, that is the stereochemistry of particular coordination complex। क्या एक्सप्लेन करता है, स्टीरियोकेमिस्ट्री, दैट इज द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ पर्टिकुलर लिगैंड अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम। 2 कोऑर्डिनेशन नंबर रहा तो लीनियर, 3 रहा तो ट्रायंगुलर, दैट इज ट्रायंगुलर प्लेनर, 4 रहा तो टेट्राहेड्रल एक तो रहेगा, नहीं तो स्क्वायर प्लेनर रहेगा। देन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहा तो इट इज द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स वन। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री ऑफ पर्टिकुलर COH2 विथ Cl एटम। फिर से एक बार बताता हूँ कि प्राइमरी वैलेंसी क्या बताती है हमको, ऑक्सीडेशन स्टेट, वो कोऑर्डिनेशन स्टेट के बाहर रहता है, उसको हम काउंटर आयन कहते हैं। ऑल्सो इट इज सेड टू बी द, इट इज आयनाइजेबल वन, सो दैट इट इज सेड टू बी द प्रिंसिपल वैलेंसी और पर्टिकुलर आयनिक वैलेंसी ऑल्सो। ओके, सेकेंडरी वैलेंसी क्या कहते हैं, इट एक्सप्लेन द कोऑर्डिनेशन नंबर, इट इज प्रेजेंट इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इट इज नॉन आयनाइजेबल। Then it is coordination entity. It is said to be the coordination entity, or it is denoted by thick line. Primary valence is denoted by dash line. Or here, the particular secondary valence is also explained the geometry of coordination complex. 2 रहा तो linear, 3 रहा तो triangular, 4 रहा तो tetrahedral or square planar, और 6 रहा तो octahedral complexes one. Number next.
अब नेक्स्ट क्या होगा, देखो यहाँ पे कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो हमने सेकेंडरी वैलेंसी और प्राइमरी वैलेंसी बताया, जितना आयोनाइजेशन होगा उतना उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस पावर ज्यादा रहेगा। यहाँ पे देखो हम यहाँ पे ये एग्जांपल लेके बता सकते हैं कि पर्टिकुलर कंडक्टेंस कैपेसिटी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस कैपेसिटी पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स की किसकी ज्यादा रहेगी। यहाँ पे देखो CO/6 यहाँ पे Cl3 नेगेटिव यानी कि यहाँ पे 3 पॉजिटिव है। इसका आयनाइजेशन हुआ, कैसा आयनाइजेशन होगा, CO/6 यहाँ पे 3 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। यहाँ पे कितने आयन फॉर्म हो गए, यहाँ पे 4 आयन फॉर्म हो गए, 3 Cl और एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नंबर ऑफ आयन। ठीक है, यहाँ पे अगला गया H2O/5, यहाँ पे Cl एक अंदर आ गया विच इज एक्ट एज अ ड्यूअल इन नेचर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय थिक और डैश लाइन। यहाँ पे Cl2 आ गया, यहाँ पे 2 पॉजिटिव, एक चार्ज कम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आयनाइजेशन हो गया CO/H2O/6 2 पॉजिटिव प्लस 2 Cl नेगेटिव। यहाँ पे कितने आयन फॉर्म हो गए, 3 आयन फॉर्म हो गए। यहाँ पे CO/H2O/4 लिया, 2 Cl अंदर आ गए। यहाँ पे हमने 2 Cl क्या हो गए, अंदर आ गए। यहाँ पे Cl2 एक ही Cl बाहर है, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसका आयनाइजेशन हो गया CO/H2O/4 Cl2, यहाँ पे 1 पॉजिटिव प्लस 1 Cl आया, यहाँ पे 2 ही आयन फॉर्म हो गए। और नंबर नेक्स्ट CO/H2O/3 Cl3 और यहाँ पे चार्ज कितना होगा, 0। इट इज द न्यूट्रल particular neutral sphere complex is formed. Here only one ion is formed, CO/H2O/3 Cl3। यहाँ पे कोई चार्ज, इट इज द 0 चार्ज। अब यहाँ पे आयन कितने फॉर्म हो, पहला देखो CO/H2/6 3 पॉजिटिव था, 3 Cl आइटम थे, कितना, एक स्फीयर का और 3 Cl आयन के नंबर ऑफ आयन कितने फॉर्म हो गए, 4। यहाँ इस कॉम्प्लेक्स का आयनाइजेशन हो गया 2, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के 2 Cl के, यहाँ पे नंबर ऑफ आयन कितने फॉर्म हुए, ये 2 और एक 3। इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स का आयनाइजेशन हो गया, यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स का और एक Cl का, कितने आयन फॉर्म हो गए, 2। यहाँ पे कोई भी आयन फॉर्म नहीं होता है, यहाँ पे नंबर ऑफ आयनाइजेशन विद फॉर्म विद 0 और ओनली 1, यहाँ पे 1 ही आयन फॉर्म होगा, दैट इज द CO/H2/3 Cl3। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे 4 मिल रहे, यहाँ पे 3 मिल रहे, यहाँ पे 2 मिल रहे और यहाँ पे 1 मिल गया, एक आयन मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि जितने ज्यादा नंबर आयन के होंगे उसका कंडक्टेंस पावर ज्यादा रहेगा। दैट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इज इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ आयन इनसाइड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। यानी कि क्या हम बता रहे हैं, हम जितने नंबर ऑफ आयन रहेंगे, जितने ज्यादा नंबर ऑफ आयन रहेंगे उतना उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ज्यादा होगा। इससे हम बता सकते हैं कि पर्टिकुलर यहाँ पे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ आयन किसके फॉर्म हो रहे हैं, दिस कॉम्प्लेक्स के, बाद में इसके, बाद में इस कॉम्प्लेक्स के और लास्ट में दिस कॉम्प्लेक्स। ओके, देन इसको हम नंबर देते हैं A, B, C और D। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पर्टिकुलर किस बाय गिविंग एग्जांपल किसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ज्यादा है, तो हम बता सकते हैं कि A का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है देन B का उससे कम है C का और उससे कम है D का। दैट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इंक्रीजेस फ्रॉम B to C to B और B to A। दैट इज इट इज द number of ion is formed, that is the 4, here 3, here 2 and here for D for 1। That is electrical conductance increases as the number of ion is increases by ionization। Okay, I hope you understand this concept, that is coordination number, types of coordination complex। What is coordination number? The number of donor atom present in particular ligand। Types of coordination complex, homoleptic, heteroleptic। homoleptic यानी one type of donor atom रहेगा एक ही ligand में, यहाँ पे heteroleptic में 2 or more types of ligands are present in particular complex। Nature of coordination complex में ionic,
कैटायनिक न्यूट्रल स्फीयर कॉम्प्लेक्स, एनायनिक में कौन सा सिंपल कैटायन रहेगा और कॉम्प्लेक्स आयन, कैटायनिक में कॉम्प्लेक्स कैटायन और सिंपल आयन, और न्यूट्रल स्फीयर कॉम्प्लेक्स में दोनों भी सेम रहेंगे, ठीक है। वेवलेंथ थ्योरी को हमने देखा कि प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सप्लेन करता है, आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी द काउंटर आयन, आल्सो इट इज सेड टू बी द आयनाइजेबल और प्राइमरी और प्रिंसिपल वैलेंसी, इट इज डिनोटेड बाय डैश लाइन. Secondary valency, it explains the coordination number, it is present inside the coordination sphere. It is also used to explain the geometry of particular complexes, and also it is used the some property like electrical conductance. Thank you. In the next video we will discuss about the oxidation state of the how to calculate the oxidation state of central metal atom or basic nomenclature of particular coordination complexes. Thank you.